91.9 FM रेडियो नशा सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रंगीली रुचि आपके साथ। आज मेरे शो पर एक ऐसी गेस्ट हैं जिनको मैं पिछले आई थिंक 6 years से फॉलो करती आ रही हूँ। We have Mansi Zaveri live with us this morning, the founder and CEO of India's most trusted discovery platform for parenting and childcare, KidsStopPress.com. Thank you, Ruchi. I can't believe मैं आपके शो पे हूँ. I love your show, and Radio Nasha is one of my most favorite channels. Oh, how nice. Yeah. So Mutual Admiration Society यहाँ पर हमने शुरू कर दी है आज. Please be a part of it. But Kids Stop Press, I've been following it. Not just because मैं पिछले 3 साल से motherhood experience कर रही हूँ, but even before that because I used to love the content जो आप create कर रहे हैं वहाँ पर. And you have a digital reach of 20 million people per month, which is crazy. But I think around 12-13 साल पहले आपने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दी थी जी. और आज की सुबह सुबह ऑफिस टाइम पर हमने आपको हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में बुलाया है. क्या डिड यू गेट द हीबी-जीबीज? नहीं, क्योंकि मैं एक्चुअली सुबह 8:30 बजे काम शुरू करती हूँ. ओह, अभी भी आई एम एन एब्सोल्यूट मॉर्निंग पर्सन. और मतलब 8:30 बजे. एंड आई थिंक दिस इज फॉर ऑल मदर्स, राइट? हम हमारी लाइफ ऐसे प्रोग्राम करती हैं कि वी कैन मैनेज एवरीथिंग. सो आई वर्क 8:30 to 4:30, देन आई टेक अ ब्रेक फॉर अ लिटिल बिट, देन आई कम बैक टू वर्क एट 5:30, 6. So everything is centered around our kids, right? Because we want to be there for them. हम हर पहलू को अच्छे से करना चाहते हैं. I think that is something that we take great pride in. Oh, absolutely. यहाँ पर मेरी टीम जो है अंदर मन में हंस रहे होंगे because बीच में ना मैं ऐसे 2 घंटे का ब्रेक लेती हूँ because I have to go and pick up my daughter from her nursery. क्योंकि मैं वो first के 5 minutes miss नहीं करना चाहती हूँ. When she comes out, and she looks at me and she screams "Mama" and comes out of the nursery and tells me what happened. आज कितना jump किया, कितने jumping jacks किए. That's very important for me. But but रुचि उसको enjoy करना, क्योंकि बहुत कम समय मिलता है कि आप, और बहुत कम समय तक बच्चे ये आपको बताते हैं. So enjoy while it lasts. And I must say Radio Nasha fabulous for letting her go for 2 hours to pick up her daughter and come back, because not very many corporates are very sensitive to this. So really hats off to your team. Oh yes, absolutely. For a mother to work and keep working, I think wo support from your company, from your colleagues is very important. But talking about you, Mansi, you are the voice of the new age Indian parents. And aapne chahe as a blogger, content creator, इन्फ्लुएंसर शुरू किया हो अपने करियर को, बट नाउ यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म टू सो मेनी अदर पीपल. यू हैव ऑनलाइन कोर्सेज हैपनिंग, वर्कशॉप्स हैपनिंग, अवार्ड्स जो कि they are one of the most talked about awards. And not just in blogging category or motherhood category, but just generally it's become huge. So tell me, how does it feel now after so many years of doing this? रुचि, मैंने जब शुरू किया था ना, तब से मेरा एक ही मकसद था that it's never going to be only about me. क्योंकि फिर मैं इसको लिमिट कर देती. क्योंकि हर माँ का एक्सपीरियंस, हर पेरेंट का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है. हर बच्चे का स्वभाव, उसका टेम्परामेंट, सब कुछ अलग होता है. That's why it was very important कि मैं ये we try to get as many people involved. We never said that we are the experts. हर चीज के लिए हम एक्सपर्ट्स लेके आते थे, बिकॉज आई थिंक फॉर योर चाइल्ड यू शुड ट्रस्ट नोबडी बट एन एक्सपर्ट, राइट? एंड क्योंकि इट वाज नेवर अबाउट मी, क्योंकि जब हम व्हेन वी कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो, इट्स ऑल अबाउट मी, राइट? आई वाज़न्ट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ईगो कि मुझे आपको ये बताना था कि मैं कितनी कूल हूँ. मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ टू एम्पावर पेरेंट्स to get to those stories, to make the right choices for your children, whether you are choosing a high chair or a bathtub, और बच्चे को क्या खिलाना है, कौन से स्कूल में भेजना है, कौन सा बोर्ड चूज करना है. It has to come from a space of knowledge, and knowledge is what empowers parents. So जब मैंने Kids Stop Press शुरू किया था, तब से मेरा मकसद यही है और आज भी यही है, that our job is to just empower you as parents, ताकि आप एक informed decision ले सके. क्योंकि आपके घर के circumstances, आपका बच्चा, आपके parenting values बहुत अलग हैं और अलग होने भी चाहिए, because that's why you are you and I am I. And आप जितनी बार बोलते हैं ना, it's a platform for parents, it reminds me how many times my husband has shared
a post जो आपने post किया था with me, and he loves it. Before हमने अपने बच्चे को enroll किया into the school that she's in right now, I remember us discussing that entire conversation that you had on your page about different boards और कौन सा board क्या चीज future में आपको serve करेगा, what purpose. So amazing यार. I mean, good job. Thank you. लेकिन आज यहाँ पर हमने आपको बुलाया है क्योंकि एक बुक आपने रिलीज की है जिसका नाम है द पेरेंट्स आई मेट, एंड इस बुक के बारे में ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, जिसके बाद में मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी. आई रियली वांटेड टू रीड द बुक, आई वांटेड टू नो मोर अबाउट द बुक. क्यों आपने ऐसी एक बुक लिखी? इज दिस लाइक अ गाइड फॉर पेरेंट्स और समथिंग? So now that we have you here, congratulations on the release of the book. Please tell me more about it. So रुचि, ये बुक लिखने का चक्कर आई थिंक तब से शुरू हुआ जब मैं बुक स्टोर्स जाती थी. आई लव रीडिंग. जब मैं बुक स्टोर्स जाती थी तभी पेरेंटिंग सेक्शन जो होता था वो कुछ बुक स्टोर्स में तो होता ही नहीं है, और कुछ बुक स्टोर्स में जब होता है तो मतलब वहाँ धूल ज्यादा और बुक्स कम होती हैं. True. एंड मुझे ये ख्याल आया दैट व्हाई आर वी गिविंग सच लिटिल इम्पोर्टेंस. हम कितना कम थॉट देते हैं इस प्रोसेस को, दैट एट द एंड ऑफ द डे वी आर रेजिंग ह्यूमंस. अगले जनरेशन को हम रेज कर रहे हैं, और हम उन लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे हैं कि उनके लिए कोई बुक होनी चाहिए. बिल्कुल. एंड जितनी भी बुक्स थी वो हमेशा ऐसी थी जैसे do this so your kids will listen, do this to raise a successful kid, 5 mantras, 5 this, and this book is nothing of that. अगर आप ये सोच रहे हैं that this is going to be my parenting guide which will give me a successful child, no, this will not. Anyway, what is the definition of a successful child can be different for different people. Absolutely. Like every day in the morning, मैं कल ही बात कर रही थी किसी से हमारे ऑफिस में कि हर रोज सुबह मैं अपने बच्चे से ये पूछती हूँ, are you happy? और even at the night, you know, when we are sleeping, मैं उससे ये पूछती हूँ कि did you have a beautiful day? I don't ask her आज क्या पढ़ा, आज क्या सीखा, आज क्या किया. I just want her to be happy, and that's my definition of being so successful, you know, managing life and being happy. Right. So that's who I am. But you know, I see the people, the parents I met, and the parents that you've mentioned are pretty successful people. So ये कैसे हो रहा है, ये बताइए. तो जब मैंने ये बुक लिखना शुरू किया रुचि, दैट टाइम माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस वाज वेरी डिफरेंट, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक माय डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज वेरी डिफरेंट. क्योंकि सक्सेस वो है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपने इतनी शिद्दत के साथ किया है कि उसका कितना इम्पैक्ट आपके अलावा दूसरे लोगों पर पड़ा है. एंड आई थिंक एवरी पर्सन दैट आई हैव टेकन इन द बुक, वेदर इट इज a Priyanka Chopra, whether it's a Harsh Jain, whether it's a PV Sindhu, whether it's a Hartirat Singh, it is about understanding कि उन लोगों की जर्नी कैसी थी, क्या उनके बचपन में उनके सक्सेस का या उनके उनके फेम का राज छुपा है. हाँ, वो बीज तभी बोया गया था. Absolutely. Wow. So it's not just about them being the parents that they are, but also ऐसा क्या हुआ था उनके साथ में that they've become the personalities that they've become. That's amazing. Absolutely. In fact, some of them are not even parents, right? So that's why we've met their parents, because I truly believe कि हम जो आज हैं वो हमारे कल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. आप कैसे लोगों के बारे में सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, आपको क्या खाना पसंद है, आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हैं. Somewhere those seeds are sown in your childhood. Absolutely. My mother is a psychologist, and you know, anytime I would tell her anything that I'm, you know, whatever, you know, facing in my life, or difficulties or things that I want to give up, and जो भी मुझे अगर hardships नहीं झेलनी है, she always links it to something that happened, you know, to me as a child. Even, you know, the childbirth was very difficult for my mother when I was being born, and me not liking gufaएं and you know, closed spaces. I wouldn't call it a phobia, but just not liking that place. My mother tells me it's because you were stuck when I was being born. Wow. And you know, I'm laughing over it right now, but you know, she's a psychologist, and she tells me that there's a possibility that you're carrying it बचपन में जब तुम पैदा हुई थी तब से अभी तक में. So you're right. I'm not surprised. I'm absolutely not surprised. ये बुक सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है. I am a new parent. I have a 3-year-old daughter. So मैं तो बहुत interested हूँ. लेकिन what about people who are planning for a child, or you know, have conceived a child, expecting one, or they don't have children, or they are not even married? What is in it for them? I was, you know, surprisingly, रुचि, आपने मुझे ये सवाल किया है, and I was just telling you before this that मैं देख रही हूँ कि काफी सारे बच्चे
जो 9-10 स्टैंडर्ड में है या यू नो देयर इन द कॉलेज इयर्स, दे आर पिकिंग अप द बुक एज मच एज द पेरेंट्स आर, बिकॉज मैं उनको यही बताती हूँ कि आपको कैसे अपने पेरेंट्स को अपना मनपसंद करियर चूज करने के लिए कन्विंस करना है, उसके सीक्रेट्स भी ये बुक में है. एंड सी एट द एंड ऑफ द डे देयर आइडल्स, राइट? लाइक टुडे चिल्ड्रन आइडलाइज और श्लोक श्रीवास्तव हु इज अ टेक यूट्यूबर और उज्जवल चौरसिया हु इज अ गेमर. अगर आपको आज वो प्रोफेशंस पिकअप करने हैं, आपको अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करना है, और ना कि कन्विंस करना है पर उस कसौटी पे कैसे खरे उतरना है वो भी आपको डिसाइड करना है. जैसे श्लोक के पेरेंट्स ने उससे कहा था कि वो इंजीनियर था, उसने कहा था कि अगर पापा मुझे 1000 दिन दीजिए, मैं अपने अगर 1000वें दिन में मैंने नहीं कुछ किया मैं एक जॉब कर लूंगा. क्या बात है. तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो 1000 दिन दिए और उस 1000 दिन तक श्लोक ने लगातार कड़ी मेहनत की है एंड ही प्रूव्ड हिमसेल्फ. एंड ऑन द 1000th डे ही टोल्ड हिज फादर, पापा आज मैं गूगल के लिए काम कर रहा हूँ, यू नो गूगल के साथ काम कर रहा हूँ वर्सेस गूगल के लिए काम कर रहा हूँ. आपको किस चीज पे गर्व होगा? वाओ. नाउ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. सो देयर इज नो केक वॉक टू दिस, राइट? बट द की इज कि अगर आप वो मेहनत करेंगे, अगर वो डिसिप्लिन और you know that 100% dedication is there, आप कुछ भी कर सकते हैं. So I think people of every segment, every age, everybody can pick up this book. You know, I'll share the story of a speed painter called विलास नायक. और ये भारत के काफी सारे लोगों की स्टोरी होगी जहाँ पे विलास के पेरेंट्स सिर्फ एक पान बीड़ी शॉप ओनर थे. बैंगलोर के पास, एक छोटे से गांव के पास. एंड विलास ने 26 साल तक उस शॉप में काम किया और वो साथ साथ में वहीं पे ड्राइंग करते थे. उन्होंने अपना MBA कंप्लीट किया HR में. उन्होंने IBM में जॉब छोड़कर ये स्पीड पेंटिंग एट द एज ऑफ 26 स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अपने माँ बाप के सपने पूरे करने थे. ही नीडेड दैट स्टडी जॉब, ही नीडेड दैट स्टडी इनकम. पर जब उन्हें लगा कि मैं जो IBM में जॉब कर रहा हूँ और स्पीड पेंटिंग का काम साथ साथ में कर रहा हूँ, अब मैं कुछ डिसेंट कमा रहा हूँ और अब मैं अपने माँ बाप को बता सकता हूँ मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरा पैशन है, प्लीज मुझे करना है. सो इफ यू हैव दैट पैशनेट, इफ यू आर पैशनेट और आप शायद अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते हैं, तब भी ये किताब आपके लिए है. क्योंकि वो जो मेहनत आपको करनी है, there is no way that you're going to be able to escape that. वो तो आपको करनी ही है. पर how do you give your parents that confidence कि मैं कुछ कर सकता हूँ, right? और फिर वो किसी भी फील्ड में हो, it doesn't matter. So I think it is both ways round कि अगर आप पेरेंट हैं, so what should you perhaps be doing, या फिर थोड़े से आइडियाज, थोड़ा सा गाइडेंस इस टाइप का आपको मिल सकता है कि कैसे आप अपने बच्चे को व्हाट दे आर बेस्ट एट उसमें और बेहतर बना सकते हैं. एंड इफ यू आर अ चाइल्ड और अ टीनेजर एंड यू थिंक दैट यू वांट टू डू ए पर्टिकुलर थिंग जो कि मेन स्ट्रीम हो ना हो, लेकिन आज की तारीख में तो पेरेंट्स ये भी बोल सकते हैं कि बेटा इन्फ्लुएंसर बनो, क्यों इंजीनियर बनना है. बट इफ अ चाइल्ड वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, देन हाउ टू पटाओ योर पेरेंट्स टू जस्ट डू दैट. Absolutely, 100%. So that is what The Parents I Met is all about by Mansi Zaveri, and you must get your copy. It's available at all leading bookstores and online as well. Thank you so much, Mansi, for being a part of my show. Thank you. Thank you so much for being this fabulous content creator who has some amazing podcasts, who has this kidsstoppress.com as a platform for parents, and who is this amazing parent that we all look up to. Thank you. Thank you so much, Mansi. Thank you so much for having me, Ruchi. Radio Nasha.